Hello students. So today we are going to discuss the chapter 5th, data handling. So in this chapter we will be solving the first exercise 5.1. But before that, let's understand some terms. So first, as you can see here is written data handling. Okay. So data means the unorganized data. Okay. That means raw data. Unorganized information or raw information, that is called data, and to manage that data we call it data handling. Okay, now let's see some other terms. So in previous class you must have learned about how to represent data. Okay, because you have some introduction in your previous class. So in that class you have learned that we can manage data, or we can take information from that raw or unorganized data by simply organizing it in tally marks or pictograph or bar graph. Okay, so these are all where we organize the given data and take information properly from them. Okay, so what is a pictograph? A pictorial representation of data using symbols. So हम data को कैसे represent करते हैं? Pictorial representation. Symbols को use करके हम pictorial representation करते हैं data का, और फिर उससे information find out करते हैं, which is very easy to understand. Okay, so like here we have an example where we have given a symbol car. Okay, symbol is a car, and here one car represent 100 cars. Okay, that means one symbol of this car represent 100 cars, and here is written one symbol stand for 100 cars. Okay, and just like that, in 3 months we have given that there are different number of cars, and that means some company is must be producing cars. So in July there are 2 cars, that are complete 2 cars, and 1 half car. That means this represent 100 cars, this represent again 100 cars, and this is for 50 cars. Okay, because this is a half picture, that means it is half of 100, that is 50. So total cars in July that are produced are 250. Okay, similarly in August we have 3 cars that represent 300, and in September we have 4 cars that represent 400. Okay, so first question is how many cars were produced in month of July. So July में कितनी कार प्रोड्यूस हुई है? 250. In which month were maximum number of car produced? So we can easily say that 400, that in September. Okay, so this is how the given data becomes so interestingly easy to read when we organize in this pictorial method. Okay, second we have a bar graph. What is a bar graph? A display of information using bar of uniform width with heights being proportional to respective values. So आपको यहाँ पर ये कॉलम जैसे दिख रहे हैं, इनको हम बार्स बोलते हैं. ओके, सो दीज आर बार्स. सो हम इंफॉर्मेशन को इन बार्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दीज बार मस्ट बी सेम इन विड्थ. ओके, सो सबकी विड्थ सेम होनी चाहिए, एंड सेकेंडली द हाइट इज बीइंग प्रोपोर्शनल टू रिस्पेक्टिव वैल्यूज. तो जितनी जिसकी वैल्यू होगी उसके पर्सपेक्टिव में इनकी हाइट होगी. ओके, so this is a bar graph, and in this bar graph we can clearly see that we have given bars where these bars are representing years in horizontal, that is x-axis. In horizontal axis we have years 2003 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, and 7 to 8, and this is called academic year. Okay, second we can find out in vertical line we have number of students in class 8th. So 8th में number of student कितने हैं? Now we can clearly see that academic year 2003-4 में कितने number of student रहे होंगे? 100.
4-5 में 200, अगेन 5-6 में 250, 6-7 में 300 and 7-8 में 350. So it is easy to find out or to read this graph. Okay, now you can easily give the answer given in this example. Like, what is the information given by the bar graph? So इस bar graph से आपको क्या information मिलती है? That in different academic year the number of student in class 8th, okay, this information is given in this bar graph. Okay, now in which year is the increase in the number of student maximum? तो कौन से ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम नंबर इंक्रीज हुए हैं? ओके, इंक्रीज मतलब अगर 2003-4 में 100 हैं तो 4-5 में कितने हुए हैं? 200, दैट मीन्स डबल. ओके, अगर 4-5 में 200 है तो 5-6 में कितने हुए? 250, यानी कि ओनली 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड. सिमिलरली 6-7 में 50 increased and 7-8 में 50 increased. But here we can see that from 3 to 4 and 4 to 5 we have increased number of students are 100. That means in which year the increase in the number of student maximum? So we have, it was the initial and then we increased from here to here, that is in 4-5. So 2004 and 5. Okay, now थर्ड, इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम? सो कौन से ईयर में है? 2007-8 में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है 350. एंड स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 2005-6 इज ट्वाइस दैट ऑफ 2003-4. तो 5-6 में स्टूडेंट्स ट्वाइस हैं 3-4 से. सो 2005-6 में हमारे पास 250 स्टूडेंट्स हैं. ओके, एंड 2003-4 में हमारे पास है 100 students. Are 250 double of 100? No, these are clearly not double, more than double. We have, the difference is 150, that is more than double. That means this is false. Okay, double bar graph. What is double bar graph? When we use double bar to show data simultaneously. Okay, we have given here the bar graph showing two sets of data simultaneously. दो डेटास को एक साथ एक ही ग्राफ में जब हम शो करते हैं बार ग्राफ में, तो हम डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं. ओके, इट इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन ऑफ डाटा. तो हम डेटा का कंपैरिजन करने के लिए जो है ये डबल बार ग्राफ बहुत यूजफुल होता है. ओके, सो हियर वी हैव गिवन एग्जांपल in which we have this vertical line y and this is horizontal line x. Okay, now we have given some information. Here we have one white square and one gray square. Okay, that means white square is showing 2005-6. जो भी ये हमारे पास white bars हैं ये 2005-6 का डेटा शो कर रहे हैं. ओके, एंड 2006-7 जो है वो हमारे पास ग्रे में शो हो रहा है. ओके, दैट मीन्स जो भी ग्रे वाला बार होगा हम इसको 2006-7 कंसीडर करेंगे और वाइट वाले बार को 2005-6. ओके, नाउ इट्स मैथ्स, social science, science, English, Hindi. So these are the subjects in this line given. Now on the vertical line marks obtained by student. So students हैं जिन्होंने marks obtain किया है इन subjects में during these 2 years. Okay, now we have given the vertical line marks are up to 100. Okay, now first question is what is the information given by the double bar graph? So ये double bar graph क्या information दे रहा है? That the marks obtained by student in different subjects in the year 2005-6 and 6-7. Okay, second question is in which subject has the performance improved the most? So कौन से सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है? ओके, सो मैथ्स में हम देख सकते हैं 2005-6 में कितने मार्क्स आए थे? 30. ओके, एंड 2006-7 में कितने मार्क्स आए हैं? 60. काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, राइट? 30 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट आया है. नाउ इन सोशल साइंस वी हैव 50 and 60, 10 मार्क्स. दिस इज 45 and
50, 5 मार्क्स का. दिस इज 50 एंड दिस इज 45, अगेन 5 मार्क्स का बट डिक्रीज हुए हैं. एंड हियर 60. सो कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है. दैट मीन्स मैथ्स में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है. सो सब्जेक्ट आएगा मैथ्स. ओके. थर्ड इज इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डिटोरियरेटेड. सो कौन से सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस कम हुई है. सो वी कैन सी दैट यहाँ पे इंग्लिश में कम हुई है. एंड फोर्थ इज इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पर. तो परफॉर्मेंस एक जैसी कौन से सब्जेक्ट में रही है, हिंदी में. ओके. सो दिस इज हाउ वी रीड डबल बार ग्राफ. सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग डेटा. Usually the data available to us in an unorganized form called raw data. Okay, as I said before, जो unorganized data होता है उसको हम raw data कहते हैं. To draw meaningful inferences we need to organize that data systematically. तो इस raw data से हम मीनिंगफुल इंटरफेरेंस अगर निकालना है तो हम उसको सिस्टमेटिकली क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एग्जाम्पल दिया है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वी आस्क फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट. द रिजल्ट वॉज एज लिस्टेड बिलो. सो कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे, उनके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया और उनकी ये लिस्ट है: आर्ट, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट, इंग्लिश, मैथ्स, इंग्लिश, आर्ट, साइंस. सो दीज आर सम स्टूडेंट्स जिनको पूछा गया था. सो पहले स्टूडेंट को आर्ट पसंद है, दूसरे स्टूडेंट को मैथ्स पसंद है, तीसरे स्टूडेंट को साइंस पसंद है, सिमिलरली इंग्लिश है, मैथ्स, आर्ट. दीज आर द सब्जेक्ट्स. ओके. नाउ विच इज द मोस्ट लाइक सब्जेक्ट एंड द वन लीस्ट लाइक. तो इनमें से हमें बताना है कि कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा पसंद किया गया है और कौन से सब्जेक्ट को कम पसंद किया गया है. सो ये हमारे पास जो डेटा है ये रॉ डेटा है. ओके, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड है. अब इससे अगर हम इंफॉर्मेशन निकालें तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा. कैसे? फर्स्ट वी हैव गिवन आर्ट, देन वी हैव गिवन मैथ्स. तो हम पहले आर्ट को काउंट करेंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम. सो इट विल बिकम अ कंफ्यूजिंग. ओके. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में मैनेज करते हैं. ओके. नाउ एज यू कैन सी, जितने भी सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया हमने उनको एक कैटेगरी बना दी सब्जेक्ट्स की: आर्ट, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश. ओके. नाउ इसके लिए एक टैली मार्क्स आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है. इसके लिए कॉलम बनाया है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट. ओके. सो टैली मार्क्स जितने भी स्टूडेंट को पसंद आएगा उतने वो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे. ओके. सो आर्ट कितने बच्चों को पसंद है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And here we can see that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So number of students are 7 जिनको आर्ट पसंद है. Okay. Similarly for maths we have 5 students. So number of student will be 5. साइंस कितनों को पसंद है? पहले स्टूडेंट को पसंद है, फिर अगला जो स्टूडेंट आया उसके लिए 1 more stick, देन नेक्स्ट मैथ्स वाले के लिए 1 more stick. एंड सिमिलरली साइंस में टोटल स्टिक्स आई 6. दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक साइंस आर 6. इंग्लिश के लिए 4. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 4 हु लाइक इंग्लिश. सो जो ये नंबर हमारे पास आते हैं दैट मीन्स रिपीटेटिव नंबर. ओके. कि आर्ट को 7 टाइम पसंद किया गया है, मैथ्स को 5 टाइम्स यानी कि 5 बच्चे पसंद कर रहे हैं, साइंस 6 टाइम आ रहा है, इंग्लिश 4 टाइम्स आ रहा है. तो ये हमारे कहलाती है फ्रीक्वेंसी. ओके. व्हाट? फ्रीक्वेंसी. The number of tallies before each subject give the number of students who like the particular subject. Okay. This is known as the frequency of the subject. So ये number हमारे पास होते हैं frequency. Frequency gives the number of time that a particular entry occurs. So frequency हमारे पास वो number of time देती है जितनी बार वो entry हमारे पास आई है. यानी कि आर्ट की entry हमारे पास 7 times आई है तो हमारे पास frequency 7 होगी. Okay. और जो टेबल हमारे पास इस तरीके से बनती है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके. नाउ ग्रुपिंग ऑफ डेटा. अब आपको ये सब इतना लेंदी लग रहा होगा पढ़ने में, बट इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ नॉट दैट लेंदी एक्चुअली. ओके. सो बेसिकली हमें डेटा को ग्रुपिंग कैसे करना है. अभी तक हमने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड टैली मार्क्स कैसे निकालना है, पर वो हमारे पास
जब डेटा कम था, ओके, हमारे पास केवल कुछ ही स्टूडेंट्स थे जिनके लिए हमें ये रिजल्ट फाइंड आउट करना था. नाउ वी हैव हियर example of this. Okay, here we can see that consider the following marks out of 50 obtained in mathematics by 60 student of class 8th. So 60 student के marks हमने consider किए मैथ्स में. ओके, सो ये उनके मैथ्स के मार्क्स हैं आउट ऑफ 50, राइट. अब हम इसके लिए अगर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे जैसे हम पहले बना रहे थे, सो ये बहुत ज़्यादा लेंथी टेबल बन जाएगी. लाइक पहले हमारे पास मार्क्स क्या है, 5 भी है, 7 भी है, 10 भी है. तो 5 का बनाना पड़ेगा, 7, 10, 12, 11, 12, 13 एंड सो ऑन. और तब जाके हमें ये ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे. बट इन दिस मैनर दिस विल बिकम अ क्वाइट लेंथी प्रोसेस. ओके, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको ग्रुप फॉर्म में सेपरेट कर देते हैं. ओके, लाइक स्टूडेंट हुज मार्क्स आर बिटवीन 0 to 10, स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर फ्रॉम 10 to 20. तो ऐसे करके हम इनको ग्रुप में बना देते हैं. सो लेट्स रीड दिस टेबल आउट. वी हैव फर्स्ट ग्रुप 0 to 10. तो इसमें कितने स्टूडेंट हैं, 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, जिनके मार्क्स 0 और 10 के बीच में. ओके, सो वी हैव 2 स्टूडेंट. नाउ 10 to 20 we have 10 students whose marks are between 20 to 30. We have 21 student, and whose marks are between 30 to 40 are 19 student. Marks between 40 to 50 are 7 student, 50 to 60 1. Now you can see that here is 60, but 60 तो मार्क्स नहीं था, राइट. हमारे पास आउट ऑफ 50 थे मार्क्स, बट यहाँ पर हमारे पास एक ग्रुप और बन गया है 50 to 60. ऐसा क्यों? बिकॉज वी कैन सी दैट वी हैव 0, 10, 10, 20. 10 हमारे पास 2 बार आ रहा है, 20 2 बार आ रहा है. हम अगर इस तरीके से डेटा लिखेंगे तो जिस स्टूडेंट के 10 मार्क्स होंगे वो यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी. तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये कैटेगरी हमारी है 0 to 10, इसमें हम एक लिमिट सेट कर देते हैं. इसको हम बोलेंगे क्लास इंटरवल, और इसकी जो लिमिट होगी ये है लोअर लिमिट एंड ये है अपर लिमिट. ओके, जो सबसे कम जो लिमिट है वो लोअर लिमिट है और सबसे ऊपर की जो लिमिट है वो अपर लिमिट. ओके, सो जो हमारी 0 to 10 वाली कैटेगरी है उसमें जो 10 मार्क्स अगर किसी स्टूडेंट के आते हैं तो वो इस कैटेगरी में नहीं आके बल्कि 10 to 20 वाली कैटेगरी में हम लिखेंगे. सिमिलरली जो 20 वाला स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 20 आए होंगे वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, वो अपर कैटेगरी में आएगा, यानी कि 20 to 30. ओके, सो इसी तरीके से 10 के मार्क्स 10 to 20 में आए, 20 के मार्क्स 20 to 30 में, 30 वाले के मार्क्स 30 to 40 में, 40 वाले के मार्क्स 40 to 50 में, एंड सिमिलरली 50 वाले के मार्क्स 50 to 60 में. बट 60 है नहीं, दैट मीन्स जिसके मार्क्स 50 होंगे वो इस कैटेगरी के अंदर आएगा. ओके, सो एज वी कैन सी फर्स्ट ग्रुप इज 0 to 10. सो स्टूडेंट जिनका मार्क्स 0 to 10 के बीच में है वो हमारे पास कौन है, फर्स्ट इज दिस 5 जिसके मार्क्स 5 है आउट ऑफ 50, एंड सेकेंड इज दिस पर्सन जिसके मार्क 7 है आउट ऑफ 50. ओके, दैट मीन्स 1, 2. सो टैली मार्क्स में 2 स्टिक आएंगी और फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 2. ओके, 2 स्टिक्स है, 2 फ्रीक्वेंसी. ओके, सो इस ग्रुप के अंदर कितने स्टूडेंट फॉल होते हैं, 2 स्टूडेंट्स. ओके, नाउ आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट भी समझ में आ गई. नाउ अपर क्लास और लोअर क्लास का जो डिफरेंस है वो हमारा साइज कहलाता है. ओके, लाइक अपर क्लास इज 10 एंड लोअर क्लास इज 2. तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 10 - 2 इज 8. सो ये हमारे साइज हो जाएंगे किसका, इस कैटेगरी का. ओके, नाउ बार्स विद डिफरेंस. ओके, व्हाट इज बार्स विद डिफरेंस. तो बार्स विद डिफरेंस में बेसिकली हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम के बारे में. ओके, हिस्टोग्राम जैसे कि हम बार ग्राफ पढ़ रहे थे, पिक्टोग्राफ, वैसे ही हिस्टोग्राम. व्हाट इज हिस्टोग्राम, लेट इट अंडरस्टैंड बाय दिस टेबुलर.
ये वही टेबल है जो हम अभी डेटा को ग्रुप करने के लिए यूज कर रहे थे, दैट इज 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स मैथ्स के अंदर आउट ऑफ 50. ओके, सो ये वही टेबल है. ओके, नाउ इसमें कैटेगरी है 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास मेंशन है and total number of students are 60. Now we organize this kind of data in this kind of graph. Okay, first let's understand this graph. We have this vertical line and this is horizontal line, and in this graph we have these class intervals. Okay, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. Okay, so these are all class intervals. So these are nothing but marks. Okay, ये marks स्टूडेंट के मार्क्स थे जिनको हमने क्लास इंटरवल में शो किया था. सो दीज आर मार्क्स. अब इसमें क्या डिफरेंस है, पिछले बार ग्राफ में हम इनको सेपरेट करके बनाते थे, जो ये बार्स हमारे होते थे इनको हम सेपरेट बनाते थे. नाउ अब हमारे पास एक ही इंटरवल के अंदर ये जुड़े हुए दिख रहे हैं. ओके, लाइक इंटरवल इज 0 to 10. ओके, ये हमने बना दिया है 2. नंबर ऑफ स्टूडेंट आर दिस. ओके, नाउ इंटरवल इज 0 to 10, तो इसके अंदर कितने स्टूडेंट है 2. फिर दूसरा इंटरवल हमारा 10 to 20 है, तो इसके लिए हम 10 अलग से तो नहीं लिखेंगे. सो वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर एंड देन इट गोज टू द 20. ओके, नाउ 20 यहीं से स्टार्ट होगा एंड देन 30 तक, 30 स्टार्ट होगा 40 तक एंड 40 to 50 एंड 50 to 60. And this is how this graph is made. Okay, now let's read this important information. The height of the bar shows the frequency of the class interval. Okay, ये frequency show कर रहा है. जैसे कि हमें पता है ये हम क्या कर रहे थे, frequency find out कर रहे थे कि कितने स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए. So these are 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अप टू 22, क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट स्टूडेंट कितने हैं 21 है. सो हमने इनको 22 तक मार्क कर दिया है. ओके, और गैप हमने लिया है 2 का. फाइन, सो दीज आर द फ्रीक्वेंसी. नाउ ऑल्सो देयर इज नो गैप बिटवीन बार्स एज देयर इज नो गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल. एज आई सेड बिफोर, यहाँ पे क्लास इंटरवल के बीच में कोई गैप नहीं है. 0 to 10 है, 10 to 20 है, यानी कि ऐसा तो नहीं है 15 to 20 है तब जाके इसमें गैप आता. ये कंटिन्यूअस क्लासेस है. ओके, 0 to 10 है, फिर 10 से स्टार्ट हो रहा है 20. फाइन, नाउ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन दिस मैनर इज कॉल्ड हिस्टोग्राम. ओके, और जब हम डेटा को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट वी मेक क्लास इंटरवल. दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नोन एज हिस्टोग्राम. ओके, अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानना है कि हिस्टोग्राम की प्रॉपर्टी क्या क्या है. ओके, फर्स्ट दिस एरो इज शोइंग कि यहाँ पर एक जैग्ड लाइन बनाई गई है. ओके, जैग्ड मीन्स ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ना बन के थोड़ा सा जैग करके फिर इसको आगे बनाया गया है. वाई? बिकॉज वी डोंट राइट हियर 0. आप यहाँ पे देख रहे होंगे हम यहाँ पे 0 का कोई भी मेंशन नहीं कर रहे. दैट मीन्स zagged line, this line. Okay, zagged line has been used along the horizontal line to indicate that we are not showing numbers between 0 to 20. तो 0 to 20 के बीच में हम नंबर शो नहीं कर रहे हैं, तो वो लाइन हमारी ऐसे शो होगी. ओके, सपोज हमारे पास जो ये इंटरवल आता है, ओके, ये इंटरवल हमारा 20 से स्टार्ट हो रहा है एंड देन उसके गैप जो है क्लास इंटरवल है वो 10-10 का ही है, बट स्टार्ट 0 to 20 हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जैग लाइन स्टार्ट कर देंगे. ओके, दैट मीन्स हम 0 to 20 को शो नहीं कर रहे हैं. ओके, नाउ बार्स ऑफ इक्वल विथ नो गैप इन बिटवीन. सेकेंड प्रॉपर्टी इज, जो बार्स हम बनाएंगे ये इक्वल विड्थ के होंगे, यानी कि इनकी चौड़ाई सेम होगी, ये सेम विड्थ के होंगे और इनके बीच में कोई गैप भी नहीं होगा. राइट, height of bar gives the number of data items in the particular group and is the frequency. और इनकी height क्या शो करेगी, frequency शो करेगी. ओके, so this is the histogram. Now let's move to the exercise 5.1.
So exercise 5.1. Question first is, for which of these would you use a histogram to show the data? ओके, तो आपको बताना है इनमें से आप कौन सी केस यूज करोगे हिस्टोग्राम को यूज करने के लिए. ओके, सो फर्स्ट इज द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग. सो किसी पोस्टमैन के बैग में डिफरेंट एरिया के लिए लेटर्स हैं. ओके, तो इसको क्या हम हिस्टोग्राम से शो कर सकते हैं? नहीं, हमारे पास उसमें कोई ग्रुपिंग करने के लिए कोई डेटा नहीं है, सो वी कैन नॉट यूज इट फॉर हिस्टोग्राम. ओके, तो हम इसमें कोई भी क्लास इंटरवल शो नहीं कर सकते, तो ये यूज नहीं होगा. बी, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर इन एन एथलेटिक्स मीट. किसी एथलेटिक मीट में है, ठीक है, एथलेटिक्स की मीटिंग होती है, उसमें क्या है, जो भी कॉम्पिटिटर्स आए हैं उनकी हाइट को मेजर करना है. तो क्या ये हो सकता है? तो यस, हाइट्स क्या होती है, हाइट्स हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट इंटरवल्स में, लाइक 5 फीट टू 6, 6 फीट टू 7, 7 फीट टू 8, 8 फीट टू 9. ओके, तो इस तरीके से हमारे पास हाइट्स हो सकती हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स की, और हम इनको क्लास में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, दीज आर द इंटरवल्स, सो इट कैन बी यूज टू शो इन अ हिस्टोग्राम. ओके, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज. सो कोई 5 कंपनीज कैसेट्स प्रोड्यूस कर रही हैं. अब इसमें हम इंटरवल तो फाइंड आउट नहीं कर सकते. 5 कंपनी होगी, एक कंपनी है, दूसरी कंपनी है, तीसरी है, फोर्थ है, ए बी सी डी. ओके, और ये कैसेट्स प्रोड्यूस कर रही हैं 20, 30, 40. सो इसमें हम इंटरवल तो नहीं बना सकते, राइट? सो इट विल ऑल्सो नॉट बी यूज इन हिस्टोग्राम. ओके, सी पार्ट इज फॉर we cannot use, so no. D, the number of passengers boarding train from 7 am to 7 pm at station. Trains board करने वाले passengers के numbers. Okay, so suppose we have from 7 am to 7 pm. So 7 am to 8 am के बीच में कितने passengers ने board करी? 8 am से 9 am के बीच में कितने passengers ने board करी? Similarly हम ऐसे 6 pm से 7 pm के बीच में कितनों ने बोर्ड करी, एंड 7 pm टू 8 pm के बीच में कितनों ने बोर्ड करी. इसमें हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं, तो डी वाला हिस्टोग्राम में यूज हो सकता है. ओके, सो यस, इट कैन बी यूज इन अ हिस्टोग्राम. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल. ओके, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में सामान खरीदने के लिए जो लोग आते हैं उनको कैसे मार्क किया गया है? मेंस को एम से, वुमेन्स को डब्ल्यू से, बॉय को बी से, एंड गर्ल्स को जी से. ओके, द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 hours इन द मॉर्निंग. ओके, तो फर्स्ट 2 hours मॉर्निंग में जितने लोग आए हैं, सपोज शॉप स्टार्ट होती है 8 am से. ओके, सो 8 am टू 10 am कितने लोग आए हैं, ये इस कैटेगरी के अंदर शो होते हैं. ओके, नाउ मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, ड्रॉ अ बार ग्राफ्स टू इलस्ट्रेट इट. ओके, तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और टैली मार्क्स भी यूज करना है. ओके, सो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट आप एक टेबल बनाओगे. ओके, यहाँ पर आएगा शॉपर्स, जो शॉपिंग करने आए हैं. सेकंड में आएगा टैली मार्क्स, एंड थर्ड में आएगा नंबर ऑफ शॉपर्स. ओके, सो ये उनकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. सो शॉपर्स यानी कि फर्स्ट इज शॉपर्स हैं एम, डब्ल्यू, बी एंड जी, यानी कि मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल्स. तो ये हमारे पास शॉपर्स है. ओके, सो एम के लिए टैली मार्क्स कितना आएगा, काउंट फॉर एम. सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ओके, सो हमारे पास जो M वाली कैटेगरी है उसके लिए टैली मार्क कितने बनेगा, 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. सो टोटल नंबर ऑफ M आर 15. तो हमने 15 हमारे पास नंबर ऑफ शॉपर्स आ गए. ओके,
सिमिलरली वुमेन के लिए करेंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5, ओके। देन सिमिलरली ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हमारे पास 28 तक आ जाएगा, ओके। 15 20 25 एंड 3, दैट इज 28। सो ये हमारे पास 28 आ जाएगा। सिमिलरली फॉर बॉयज, बॉयज का कितना जाएगा? बॉयज काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, ओके। सो बॉयज हमारे पास आए हैं केवल 5, सो टैली मार्क्स में आएंगे 4 स्टिक्स हॉरिजॉन्टल एंड 5th क्रॉसवर्ड्स, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ शॉपर आ जाएंगे बॉयज में 5, ओके। सिमिलरली फॉर गर्ल्स वी हैव 12, सो यू विल मार्क टैली 10 एंड 12, ओके। ये आपके आ गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब आप बनाओगे बार ग्राफ, ओके। सो बार ग्राफ कैसे बनेगा? फर्स्ट यू हैव टू मेक 2 लाइन्स, वन वर्टिकली एंड सेकेंड हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर से हमारे पास 0 पॉइंट है। नाउ जो हॉरिजॉन्टल में आएगा ये हमारे पास आ जाएगा शॉपर्स, ओके, यानी कि जो शॉपिंग करने आए वो। और ये पॉइंट हमारे पास वुमेन। आप एक सिमिलर गैप रखोगे, वुमेन देन मैन देन बॉयज देन गर्ल्स, ओके। एंड फ्रॉम हियर वी हैव 15 12 28, तो हम गैप कितने का ले सकते हैं? 5 5 का गैप ले सकते हैं। सो 0 to 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20 20 to 25 एंड 25 to 30, ओके। नाउ वुमेन्स हमारे पास कितनी है? नंबर ऑफ शॉपर्स इन वुमेन इज 28, सो ये आपका बार ग्राफ जाएगा अप टू 30 से थोड़ा सा नीचे एंड ये, ओके। सेकेंड मेंस आर 15, so this is 5 10 15 20 25 एंड 30, ओके। 15 तो 15 तक जाएगा एंड देन दिस, आपको ये प्रॉपरली बनाना है। नाउ बी, बॉयज आर 5, so 5 एंड 12 गर्ल्स, सो 10 से हल्के से ऊपर हम लेंगे गर्ल्स, ओके। सो दीज आर number of shoppers and these are the shoppers, okay. So you will make bar graph like this, fine. Now let's come to the question number 3. Question number 3 is the weekly wages in rupees of 30 workers in a factory are, तो आपके पास क्या है? 30 वर्कर्स के जितना वो कमाते हैं ये उनके वेजेस दिए हैं, ओके, कितना कमाते हैं, फाइन। नाउ using tally marks make a frequency table with intervals as 800 to 810 810 to 820 and so on। तो हमें क्या करना है? एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है और टैली मार्क्स का भी यूज़ करना है, ओके। और इंटरवल हमें क्या लेना है? 800 to 810 810 to 820, और ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये अप टू 890 तक जा रहा है, ओके। दैट मीन्स हम लास्ट गैप कितना लेंगे? 890 to 900, ओके। एंड गैप हमारा होगा 800 to 810, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्लास इंटरवल, सो ये क्लास 8th वाला क्लास नहीं है, ये क्लास यानी कि इनकी कैटेगरी वाला क्लास है, ओके। क्लास इंटरवल, सेकेंड टैली मार्क एंड थर्ड इज फ्रीक्वेंसी, ओके। सो इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे। देन यहाँ पे आप क्लास इंटरवल स्टार्ट करोगे 800 से, 800 to 810, ओके। दिस इज फर्स्ट 810 to 820, सेकेंड 820 to 830, third 830 to 840, 840 to 850, 850 to 860,
860 to 870, 870 to 880, 880 to 890, 890 to 900. Okay, and this is the last class interval. Now let's see 800 to 810 में कितने वर्कर्स आ रहे हैं. सो स्टूडेंट, जिन वर्कर्स का वेज 810 होगा उसको हम इस क्लास के अंदर नहीं लेंगे, वो हम उससे अपर क्लास में आ जाएगा. ओके, नाउ 800 to 810, लेट्स से these all are more than 810. So first 804, 808, 806. So we have 3 workers in this category, 1 2 3. Okay, now frequency will be 3 आ जाएगी. फ्रीक्वेंसी कितने वर्कर्स है? 3 हैं तो 3 फ्रीक्वेंसी. नाउ 810 to 20, so 1 2, सो इसके अंदर हमारे पास 2 ही वर्कर्स हैं तो फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगी. नाउ 20 to 30 में हमारे पास 820 है. ओके, बिकॉज 820 अपर क्लास में जाएगा तो केवल एक ही हमारे पास यहाँ पे वर्कर आ रहा है. यहाँ पे एक ही वर्कर है जो इस कैटेगरी के अंदर है, सो फ्रीक्वेंसी इज 1. सिमिलरली आप आगे इनको फिल करते जाओगे. जैसे 30 to 40 के लिए हमारे पास आ जाएंगे 9. ओके, 5 6 7 8 9. ओके, सो फ्रीक्वेंसी विल बी 9. एंड 40 to 50 के लिए 5, फ्रीक्वेंसी इज 5. सिमिलरली 50 to 60 के लिए 1, फ्रीक्वेंसी इज 1. 60 to 70 के लिए 3, फ्रीक्वेंसी विल बी 3. एंड 70 to 80 के लिए 1, फ्रीक्वेंसी इज 1. 80 to 90 इज 1, frequency is 1. 90 to 900 is 4. 1 2 3 4. तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 आ जाएगी. ओके, अब हम इनका टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा. टोटल कितने वर्कर्स हैं? 30 वर्कर्स. ओके, ये हमारे पास यहाँ पे दिया भी है और अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा. सो दिस इज थर्ड क्वेश्चन. Now question number 4 is draw a histogram for the frequency table made for the data in question number 3 and answer the following questions. So हमने जो frequency table question number 3 में draw की थी उसके लिए हमें अभी histogram तैयार करना है. ओके, और इन क्वेश्चंस का आंसर देना है. सो आपको frequency table तो समझ में आ गई है. नाउ उस टेबल की हेल्प से हम जब histogram तैयार करेंगे तो वो इस तरीके से तैयार होगा. ओके, we will have to draw the vertical line and horizontal line like this and put the number of workers in this vertical line and the weekly wages in this horizontal line. Okay, और यहाँ पर से हम ये weekly wages ग्रुप में डिवाइड कर देंगे. 800 to 810, 810 to 20 और 10 का गैप लेके 890 to 900. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. एंड जो हमारे पास 800 to 810 वेजेस वाले वर्कर्स हैं वो है टोटल नंबर 3. ओके, सिमिलरली वेजेस 810 to 20 जितने वर्कर्स का है वो है नंबर 2. ओके, यानी कि 2 वर्कर्स के जो वीकली वेजेस है वो है 810 to 820 के बीच में. ओके, सिमिलरली ये आपके पास जितने भी बार हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज the first part in this question is which group has the maximum number of workers. तो किस ग्रुप में मैक्सिमम वर्कर्स हैं? तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स इस ग्रुप में है. ओके, यानी कि 9 वर्कर्स आर इन दिस ग्रुप. सो ये ग्रुप कौन सा है? ग्रुप है 830 to 840. ओके, सो व्हाट वी विल राइट ग्रुप 830 to 840 has maximum number of workers. Okay, next is how many workers earn 850 and more. कितने वर्कर्स 850 या उससे ज़्यादा कमाते हैं? सो 850 हमारे पास यहाँ पर है. ओके, सो 850 एंड मोर यानी कि 850 भी उसमें होगा और उससे ज़्यादा भी. तो 850 हमारे पास अगर इस ग्रुप में है तो ये वाला पार्ट हमारा 850 कंसीडर होगा उससे अपर वाले क्लास में. ओके, सो 850
एंड मोर इसमें आएगा. सो दिस ग्रुप, दिस ग्रुप, दिस एंड दिस, इन 5 ग्रुप्स को हम कंसिडर करेंगे 850 एंड मोर में. ओके, सो हमारे पास कितने वर्कर्स हैं? दिस इज 1, this is 3, 1, 1 and this is 4. So 1 plus 3 plus 1 plus 1 plus 4. Okay. So इनका सम हमारे पास आ जाएगा 10, यानी कि 10 वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर. 850 से लेस देन. ओके, सो यानी कि हम ये ग्रुप इसमें कंसीडर करेंगे. ओके, 1 2 3 4 5. ओके, सो वी हैव 3, ये ग्रुप है 2, इसमें वर्कर है 1 और इसके अंदर वर्कर है 9, इसके अंदर है 5. सो 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 5. ओके, और इनका सम हो जाएगा 20, यानी कि आंसर हमारे पास आ जाएगा 20 वर्कर्स. ओके. Question number 5 is the number of hours for which student of a particular class watch television during holiday is shown through the given graph. So holidays में किसी particular class के बच्चे कितना टीवी देखते हैं, कितने hours टीवी देखते हैं पर डे, उसके लिए ये ग्राफ दिया है. ओके, अब हमें आंसर्स देने हैं. फर्स्ट इज for how many hours did the maximum number of student watch TV. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ने कितने घंटे तक टीवी देखा है. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट आर दिस एंड आवर्स इज दिस. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 32. ओके, जिन्होंने टीवी वॉच किया है. ओके, सो इन्होंने कितने घंटे तक टीवी देखा है? इन्होंने देखा है, ये कौन से क्लास में आ रहे हैं? 4 to 5 में. ओके, यानी कि उन्होंने 4 to 5 आवर्स टीवी देखा है. ओके, सो आंसर विल बी 32 स्टूडेंट्स. सो क्वेश्चन फर्स्ट में हमें पूछा फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम स्टूडेंट वॉच टीवी. सो 32 स्टूडेंट्स वर द मैक्सिमम स्टूडेंट दोज हैव वॉच्ड टीवी, और इन्होंने कितने घंटे तक देखा है? 4 to 5 आवर्स. ओके, सो ये कौन से ग्रुप में आए? 4 to 5 आवर्स में. ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स. सो 4 आवर्स हमारे पास यहाँ पर है, इससे कम कितने स्टूडेंट ने टीवी देखा है? ये और ये, यानी कि 4 plus 8 plus 22, that is 34 स्टूडेंट्स. ओके, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा 34 स्टूडेंट्स. एंड थर्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी. तो कितने स्टूडेंट ने 5 आवर्स से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है टीवी देखने में? सो 5 इज हियर, 5 आवर्स यहाँ पर है. इससे ज़्यादा हमारे पास 2 ग्रुप आते हैं, 8 and 6. ओके, यानी कि 8 स्टूडेंट एंड 6 स्टूडेंट्स. सो 8 plus 6 is 14 students. Okay, so it was exercise 5.1. You have to do all these questions in your notebook and practice them well. So student, I will see you in next video with new exercise. Till then, keep practicing and keep learning. Thank you.